Amen? अरे केवल प्रचार करो, Only preach. क्या बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है? Did ये Jesus say this? तुम्हारी डिस्टॉर्टेड टीचिंग है, This is your distorted teaching, वचन से नहीं आई। not from the वचन में word. यीशु ने कहा प्रचार करो, और ये दिखाऊंगा अभी आपको। Jesus Okay. said preach and. अच्छा फिर क्या हुआ? So what happened? 24. Then he said then his fame went throughout all Syria. तब उसकी लोकप्रियता पूरे सीरिया में फैल गई. No church can impact a city or a country if they don't move by power. कोई भी चर्च किसी शहर या किसी देश पर प्रभाव नहीं डाल सकते अगर वो परमेश्वर की सामर्थ्य में नहीं चलेंगे तो. हाँ, प्रभु हमें छतरपुर में लेकर आया जहाँ बहुत कथाएं होती हैं। अगर यहाँ पर काम नहीं होते तो कोई नहीं आता दिल्ली से इतना दूर। God has brought us into Chhatarpur where there are many storytellers. If there was no power, if there was no demonstration of power, the people would not come so far away. Okay? Hallelujah. So then his fame went throughout all Syria and they brought to him. अब क्या हुआ? जब फेम फैलने लगा, okay, now understand this. This is a godly fame. This is not ungodly fame. तब उसका यश पूरे सीरिया में फैल गया और ये जो उसकी लोकप्रियता यश है, केवल शैतान नहीं देता, परमेश्वर भी देता है। not only God, not only the devil, but even God gives fame. Because see what happens? What was the result of this fame? Now people are bringing to him all sick from various regions. इस यश से क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? अब लोग सारे क्षेत्रों से बीमार, तरह तरह के बीमार लोग उसके पास लाने लगे. क्यों ला रहे हैं? Why are they bringing them? क्योंकि वहां पे कुछ हो रहा है, Because something is क्योंकि happening वहां पे there. लोग चंगे हो रहे हैं। People are being healed there. लोग बेवकूफ नहीं है। People are not foolish. लोग कहते हैं भीड़ जा रही है, भीड़। अरे बेवकूफ थोड़ा ना भीड़। People so crowds are coming, crowds are coming. People are not They foolish. know what is happening. वो जानते हैं क्या हो रहा है. Okay? Hallelujah. Okay. आगे देखते हैं। Let's see further. मत्ती 10:1। Matthew 10:1. हमारी दिक्कत पता है क्या है? हमने गॉस्पेल को पता है कर दिया, हमने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। Our problem is we've compartmentalized the gospel. अच्छा, अरे हाँ हाँ, उनकी तो सेवकाई चंगाई करने की है। Oh, their ministries of healing. अरे हाँ, उनकी सेवकाई तो डिलीवरेंस की है। Oh, their ministries of deliverance. नहीं, No, बाइबल में नहीं है ऐसा। this is not in the Bible. Do you know there is no verse where Jesus called the 12 apostles and say, to you too, you will have deliverance ministry, you will have healing ministry, you will have inner healing ministry, you will have marriage ministry? No, it's not there in the Bible. कोई भी ऐसा वचन नहीं जहाँ यीशु ने 12 को बुलाया, तुम दोनों चंगाई करोगे, तुम छुटकारा दोगे, तुम इनर हीलिंग करोगे, तुम शादी के बारे में बताओगे. Let's see what did he do. Matthew 10:1. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits and to cast them out and to heal all kind of sicknesses and all kind of diseases. और अपने 12 चेलों को बुला करके उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए और सब तरह की बीमारियों को निकालने के लिए, सब तरह चंगा करने के लिए, सब तरह की दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए उनको अधिकार दिया. Okay, कितने चेलों को सामर्थ्य दी चंगा करने की? हाँ, क्या बात कर रहे हो? मतलब कुछ की हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं थी इसमें? So some of them didn't have healing ministry. That means There is nothing called a healing ministry. Healing- Every church should be healing the sick. healing ministry नाम की कोई चीज नहीं होती. हर एक चर्च को बीमारों को चंगा करना चाहिए, Because this is the body of Jesus. क्योंकि ये मसीह यीशु की देह है. Are you getting? See, I know it's very hard to receive it because we have heard it for so long. But in the Bible, yes, we see that there are different gifts, and that is for every believer. हम जानते There's हैं- gifts of healings. There are gifts of prophecy. But there is no ministry as such. It is for everyone. हम जानते हैं इसको ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये सब सुनते आ रहे हैं. बार बार बाइबल में अलग अलग वरदानों की बात की गई जो विश्वासियों के लिए है, लेकिन ऐसी कोई सेवकाई नहीं है, वो सभी के लिए है. आप सोचो, हम यीशु की देह हैं. नहीं, आप एक चर्च में गए, वो हाथ बोला नहीं नहीं, इस हाथ से चंगाई नहीं होती, उस हाथ में जाओ, इस हाथ से चंगाई होती है. Now we are the body of Christ. जो यहाँ है, जो शालीमार बाग में हाथ है, यहाँ चंगाई नहीं होती, छतरपुर वाले हाथ में जाओ. अरे भैया, यीशु की देह में चंगाई होना जरूरी है.
So if someone goes to this hand, the body of flesh says, no, this hand doesn't, he'll go to that hand. What happens in Chhatarpur also should happen in Shalimar. मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह जहां कहीं भी गया, हर जगह उसने बीमारों को चंगा करा। अगर वो इस कलीसिया में है तो बीमार चंगे होने चाहिए। Amen. Wherever Jesus went, he healed the sick. If Jesus is in this church, the sick should be healed here. ठीक है। अब यीशु मसीह ने क्या किया? उनको सामर्थ्य दे दी मैथ्यू 10:1 के हिसाब से दुष्ट आत्माओं को निकालने की और बीमारियों को चंगा करने की। Now Jesus gave them power to heal all sicknesses and diseases and to cast out all demons. Put 7 and 8 verse. अब फिर क्या किया यीशु ने? उनको देखिए क्या किया। Now what did Jesus do? Verse 7 and 8. And as you go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या करो? चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ओके, मगर भैया मुझे कैसे पता स्वर्ग का राज्य निकट आ गया? But how do I know that the kingdom of heaven is at hand? अगला वर्स, Next verse. बीमारों को चंगा करो। Heal the पहले sick. कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करो कि स्वर्ग का राज्य कैसा दिखाई देता है। First, tell them the kingdom of heaven is at hand, then demonstrate what that looks like. ओके, दिस इज इन योर बाइबल। ये आपकी बाइबल में भी है। He said, tell them the kingdom of God is at hand. उसने कहा उन्हें बताओ जाके कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। कोई बात नहीं भाई, Oh, doesn't matter, brother. ये बीमारी परमेश्वर आपको सिखा रहा है कुछ। God is teaching you something. He said, then heal the sick. उसने कहा बीमारों को चंगा करो, Heal the sick, चंगा करो बीमारों को, cleanse the lepers, कोढ़ियों को शुद्ध raise the dead, करो, मुर्दों को जिंदा cast करो, out demons. दुष्ट आत्मा को निकालो। कैसे मिला? How did you get it? बोलो freely. Freely. कैसे मिला? Freely you have received, Freely आपको मिला है, freely give. freely दो। इसीलिए मैं आपने लास्ट संडे भी कहा था, इस संडे भी कहूंगा, Last Sunday I said it. जिस कलीसिया में ले हैंड का पैसा लिया जाता है वो खुदा की किंगडम के हिसाब से सही नहीं है। Any church where there is money charged for laying hand or for praying, that is not right from the church, from the चंगाई बेची नहीं जा सकती। healing cannot be sold. ओके, फ्री में मिला है, यीशु ने कहा फ्री में दो। You got it for free. Jesus said, give it away for free. कैसे मिला है? How did you get it? हाँ, अगर मैंने कोर्स किया होता यूनिवर्सिटी में जाके कैसे चंगा करते हैं, उसके लिए 3 करोड़ रुपए लगाए होते तो फिर मैं आपको भी चार्ज करता। If I would have gone to a university and done a course how to heal, then I would have charged you as well. मैंने तो एक दिन प्रभु के सामने डिजायर रखा, मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि बीमार चंगा हो, फ्री में मिल गया तो फ्री में मिला, तो फ्री में दे रहे हैं। One day I put this desire before God, Lord, I want to heal the sick, and I got it for free, so we are giving for free. हजारों लोग हैं इस मिनिस्ट्री में जो लाखों सर्जरी और डॉक्टर्स को देके आए, यहाँ पे आए फ्री में चंगे हो गए, फ्री में। Thousands of people that gave lakhs of rupees away to doctors for surgeries did not get healed, came here, got healed for free. All right, Luke 9:1-2. लूका 9:1-2. ठीक है, सीख रहे हैं हम कुछ? ओके, लूका 9:1-2. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। Next verse. He sent them to preach the kingdom. अब ध्यान से सुनो। उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने। कितने लोग यहाँ मानते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा गया? अपना हाथ दिखाओ। How many of you believe we are sent to preach the kingdom? Okay, अब बाइबल में पढ़ो। He sent them to preach the kingdom of God and some special ones to heal the sick. और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और कुछ खास लोगों को बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। See, मैं आपको क्या कहता? That's the problem. We have compartmentalized. We have thought, I just preach the gospel. He has a healing anointing, so he heals. No. Once you preach the kingdom, demonstrate the kingdom. ये हमारी दिक्कत है, हमने अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल दिया कि मैं तो सुसमाचार प्रचार करूंगा, उसकी चंगाई की सेवकाई है। नहीं, एक बार प्रचार किया तो चंगा करो उसके बाद। हाँ, अगर बोला है यीशु जीवित है तो दिखाओ कि यीशु जीवित है। If you say Jesus is alive, then show that Jesus is alive. Okay. In fact, do you know how much? If I can, the more you know the heartbeat of God, the more you'll know healing is his heartbeat. Because when he sees people oppressed by sickness, his heart goes out to set them free. जब आप पिता के दिल को जानोगे
अपने लोगों को जब वो बीमार देखता है तो उसका दिल धड़कता है उनके लिए, उनके पीछे भागता है उनको चंगा करने के लिए। आप जानते हैं क्या हुआ? सैबत के दिन, हाँ, सैबत के दिन बाइबल कहती है कुछ नहीं करना। On the day of Sabbath, Bible says do nothing. और यीशु मसीह सैबत के दिन जाके चंगा करते हैं। And Jesus goes and heals on the day of Sabbath. सो जो रिलीजियस गुरु चिढ़ जाता है, Now the religious people are angry. कहता है मंडे से सैटरडे तक कर लेता चंगा, तेरे को मंडे से फ्राइडे, वही जो सैबत के दिन ही करना है चंगा। He said, don't you have Monday to Saturday, Monday to Friday to heal? Why do you have to heal on Sabbath? ओके, लेट्स सी दैट, Luke 13:14। लूका 13:14। ठीक है, ओके, हाँ, हालेलुया। सही है आपका हृदय? नहीं है तो अभी हीलिंग प्रेयर होने वाली है। ओके, but the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on Sabbath. So सोचो इस बात को, जो रिलीजियस स्पिरिट है ना, जो धर्मी लोग हैं ना, वो चिढ़ जाते हैं जब वो चंगाई होते हुए देखते हैं। आराधनालय के सरदार ने रिसियाकर लोगों से कहा कि यीशु ने सबके दिन चंगा किया है। The religious people, they get angry, upset when they see healing. And he said to the crowd, now what is happening? He's trying to bring crowd to his side. अब वो भीड़ को अपनी ओर करना चाह रहा है। He said to the crowd, there are 6 days on which men ought to work. वो कह रहे हैं 6 दिन है जब लोगों को काम करना होता है। Therefore come and be healed on them and not on Sabbath day. इसलिए उस दिन आओ, सबके दिन मत आओ चंगे होने के लिए। ओके, ठीक है। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? Now what does Jesus say? हमारा आंसर कहां से आता है? Where does our यीशु answer come से। from? From Jesus. ओके, यीशु क्या कह रहे What हैं? does The Lord that answered him and said, hypocrite. प्रभु ने उसको सुन के उत्तर दिया, कपटी। You know there is a lot of hypocrisy in the body of Christ. अब बहुत सा कपट है मसीह की देह में। वही लोग जो कहते हैं परमेश्वर बीमारी दे रहा है आपको सिखाने के लिए, वही डॉक्टर के पास भागते हैं सबसे पहले जब बीमारी होती है। The people who say God is giving you sickness to teach you are the first ones to run to My the doctor. question is, if God is putting a sickness on you to teach you, why do you want to exit the training? Then learn in that sickness. मेरा सवाल ये है कि परमेश्वर अगर बीमारी दे रहा है कुछ सिखाने के लिए, तो ट्रेनिंग से भाग क्यों रहे हो? सीखो। Is that true or not? And they will fight you for it. और वो लड़ेंगे आपसे इस बात के लिए। Then the Lord then answered him and said, hypocrite, does not each one of you on the Sabbath lose his ox or donkey from the stall and lead it away to water? So प्रभु कह रहा है, हे कपटी, तू अपने गधे को, अपनी बैल को तो छोड़ता है, उसका जो बंधा हुआ है, तेरा गधा जो बंधा हुआ है, तू उसका तो बंधन खोलता है सैबत के दिन। तो ये आगे पढ़ोगे तो ये जो औरत 18 साल से जिसको शैतान ने बांधा था, क्या मैं उसका बंधन ना खोलूं सब्त के दिन में? Should I not loosen this woman who was tied, who was bound by the devil for 18 years? सो यीशु मसीह क्या देख रहा है? बीमारी क्या है, किसने बांधा है? क्या बोल रहे हो? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे किसने बांधा है? शैतान ने बांधा था 18 साल से। यीशु कह रहा है, क्या मैं उसको ना छुड़ाऊं सब्त के दिन में? Jesus is saying, so this woman who is the daughter of Abraham, whom Satan had bound since 18 years, should I not lose her? Should I not set her free? Amen. आपने उस बहन की गवाही सुनी, 41 years से शैतान ने बांधा हुआ था, वो कलीसिया में यीशु ने छुड़ा दिया। You saw the testimony of that sister. Devil had bound her for 41 years. She came to the church. Jesus set her free. सारे डॉक्टर्स पे वो चली गई। अगर उसके लोग उसके घर में ना आए, उसकी देह के पास ना आए चंगा होने के लिए, तो फिर कहां जाएं? If his people do not come to his body for their healing, where else will they go? क्या जादू टोना करने वालों के पास जाएं क्या? Should they go to witch doctors? अरे यीशु आज भी जीवित है। Jesus आज is भी alive. चंगा करता है। He heals today. Amen. यीशु मसीह ने कभी भी चंगाई को सैल्वेशन, और मैं अगर आपको आयत के बाद आयत ले जाऊं तो मुझे लगेगा कि हमें 20-25 दिन लग जाएंगे। सारे वर्सेस मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। जब भी यीशु मसीह ने सुसमाचार बताया, चंगा किया। I can give you verses after verses. It'll take days for us to cover it. Whenever Jesus preached the gospel, he healed the sick. हाँ, अगर आप केवल प्रचार करते हो और बीमारों को चंगा नहीं करते, आप कमांडमेंट को पूरा नहीं मान रहे हो, आप आधा मान रहे हो। If you only preach the gospel but do not heal the sick, you are only doing half of the commandment. You're not obeying it fully.
आज क्यों ऐसा हो गया है? मैं when we travel Europe, we meet so many young people. They have never seen any work of God. They said, we have heard a lot of sermons, but we have never seen the power of God. This generation owes to this generation that we demonstrate God's power. जब हम यूरोप जाते हैं, जवानों से मिलते हैं, वो कहते हैं हमने कथा कहानियां तो बहुत सुनी है, प्रचार तो बड़े सुने हैं, पर परमेश्वर के कामों को होते हुए नहीं दिखा है। लेकिन ये पीढ़ी है जो कर्जदार है अगली पीढ़ी की, कि उनको परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन करके दिखाए। यहाँ पे आदित्य की ममा है, आदित्य की ममा, आदित्य's mom here. Okay. ये फैमिली आई, अपने बच्चे को आदित्य को लेकर आए व्हील चेयर में. He was like a vegetable, paralyzed, एक पत्थर की तरह. This family came here. They brought their child who was paralyzed like a vegetable on a wheelchair. मीटिंग के बाद हमने उनके ऊपर हाथ रखा, प्रे करा, कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं. After the meeting, we laid hands, prayed for him. No difference, nothing changed. और 3 हफ्ते बाद After 3 weeks, आदित्य चलता हुआ कलीसिया आ रहा है. Aditya comes walking to the church. आज कल मुझे वो परिवार मिला जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जो ब्राह्मण फैमिली है, उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु को दे दिया. इसीलिए नहीं कि मैंने उन्हें अच्छी कथा सुनाई, क्योंकि उन्होंने खुद चख के देख लिया कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है. I met this Brahmin family yesterday who has received the Lord Jesus as their Lord and Savior, not because I told them a good story, but because they have tested, they have tasted, and they have seen that He is the living God. Amen. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, if this pulpit is just about effective communication, then there are many better communicators in the world. अगर ये पुलपिट केवल सटीकता से बात करने के लिए है, तो बहुत ऐसे अच्छे वक्ता हैं जो बाहर दुनिया में हैं. There are many motivational speakers. They know how to say things perfectly. बहुत से प्रोत्साहन करने वाले वक्ता हैं जो सिद्धता से बातें करना जानते हैं. But the pulpit in the church is not for motivation, it is for demonstration. लेकिन कलीसिया का पुलपिट प्रोत्साहन के लिए नहीं है, ये प्रगटीकरण के लिए है परमेश्वर की सामर्थ. Apostle Paul says, I don't come to you with the persuasive words of human wisdom. I come to you in the demonstration of the power of the Holy Ghost. पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं तुम्हारे पास मनुष्य की चतुराई की चिकनी चुपड़ी बातें लेकर के नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण लेकर आया हूं. Okay, hallelujah. जब जीवित कलीसियाएं खड़ी हो जाएंगी हर एक जगह, ये पूरा देश यीशु के पास आ जाएगा. When living churches will rise up in every nook and corner, this entire nation will come to Jesus. There are people longing. They are saying, show us that there is a true God. We will believe. ऐसे लोग हैं जो कर्रा रहे हैं, चाहत रखते हैं कि दिखाओ हमें कोई जीवित परमेश्वर है तो हम मानेंगे उसको. We are fed up with sermons and stories. हम थक चुके हैं कथा कहानियों We are से. fed up with props and sermons. Show us the raw power of God and we will believe. हम थक चुके हैं बातों से, कहानियों से. हमें परमेश्वर की सामर्थ दिखाओ. Okay? Hallelujah. Do you know that healing draws people to God? अब जानते हैं चंगाई लोगों को परमेश्वर की ओर खींचती है. खुद सोचो, ये जो टीचिंग आई, अगर कोई व्यक्ति है जो हम इतने परिवार, अभी आप देख रहे हो हर संडे जन्म से बहरे और गूंगे बोल रहे हैं. आप सोचो उस परिवार में वो कहेंगे यीशु ने हमारे बच्चे को चंगा कर दिया, अब हम कभी नहीं मानेंगे यीशु को. Think about it. There's a deaf and mute from birth that are speaking. If when God does this, a family, would they say that Jesus has healed our child? Now we'll never believe on him. Acts chapter 9 में एक कहानी है. Acts 9, there's a story. एनियस की, जिसको पतरस ने चंगा किया, और देखो क्या लिखा है उसमें. Whom Peter healed, and see what it says. Acts 9:35. बाइबल बताती है पूरा का पूरा. So all who dwelt at Lydda and Sharon saw him and turned to. जब उन्होंने चंगाई देखी होती हुई जो पतरस ने करी, सारे के सारे प्रभु की तरफ मुड़ गए. तब लुदा और शरोन के सब रहने वाले उसे देखकर, उस चंगाई को होते देखकर प्रभु की ओर मुड़ गए. एक काम करो, 34 लगाओ. And Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Arise and make up your bed. And then he arose immediately. ठीक है? So पतरस ने उसको बोला, एनियस चंगा हो जा. उसके बाद क्या हुआ? 35 में
चंगाई के एकदम बाद, so all who dwelt at Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. तो सब जो वहां रहने वाले थे देखकर प्रभु की ओर मुड़ गए. आप जानते हैं, अगर आप कहानी सुनेंगे, आयरलैंड में एक सेंट थे, सेंट पीटर, एंड एट दैट टाइम द एंटायर आयरलैंड वाज पेगन. A story of Saint Peter. उस समय पूरा जो आयरलैंड था वो गैर ईश्वरों की आराधना करते थे. You know, they used to worship nature and these demigods. अलग-अलग चीजों की, बहुत Thor, सारे ईश्वरों की. जो आप मूवीज देखते हो आज, The movies which you see today, these are these gods. they used to worship these gods. There are many Nordic gods like that. बहुत से नॉर्डिक ईश्वर. And this man comes with the power of gospel. ये मनुष्य सुसमाचार की He ताकत starts लेकर to आया. heal the sick बीमारों को चंगा करने and लगा. cleanse the lepers and raise the dead. मुर्दों को जिंदा The करना. entire nation turned to the Lord. पूरा देश प्रभु की ओर मुड़ गया.